Okay, so good morning, all of you. Okay, so we will start today's lecture. In last lecture, we are already seen the phase one from your clinical trials in ASU. So we will. I just read that first phase one to recollect for phase one. Then we will continue for discussing your phase two or phase two around page number 6. Okay. So here we are for the last lecture. It is a human pharmacology phase one. I just read, I have already explained what we are done in phase one. So phase one is nothing but the objective of the studies in this phase is the phase is estimated for safety and tolerability with the initial administration of the Ayurvedic drug, patent or proprietary medicines into the human. The studies in this phase is the development usually have the non-therapeutic objective and may be conducted for healthy volunteer for certain types of participant. Okay, so what is the aim to estimate the safety and tolerability मतलब how much amount of maximum drug we can do or it is safe or it giving some adverse event or any other problematic any other problems in your body. So Ayurvedic drug or patent or proprietary medicines with pot, probable toxicity, that is example of the Ayurvedic drug and patent and proprietary medicines with schedule E1 ingredient are to be studied in a participant. The phase one trial should be preferably be carried out with the access to necessary to facilities closely observe and monitor the patient. Okay, studies conducted in phase one usually intended to involve in both of the following objectives, that is the maximum tolerance dose and next is the early measurement of the drug activity. Maximum tolerance dose means how much exactly maximum dose we can give, and early measurement of drug toxicity means any other side effects or adverse event are seen after giving the maximum amount of dose, which is we are studying in a phase one, that is the human pharmacology. Let's move to the phase two. So what is exactly we are done in phase two, or what will we do in phase two? That is the primary objective of the phase two. The primary objective of the phase two trial is to evaluate the effectiveness of the Ayurvedic drug, patient, or proprietary medicines for particular indications or indications in participant with the condition under the study and to determine the common short-term side effect and risk associated with the drug. ठीक है, so इसमें क्या होता है, we are giving little less amount of drug and we actually see the what are the side effect and drug risk associated with the drug. The studies in phase 2 should be conducted in a group of participants who are selected by relatively narrow criteria leading to relatively homogeneous population. These studies should be closely monitored, and the important goal of this phase 2 is to determine the dose and regimens in phase 3 trials. So, dose used in phase 2 is usually but not always less than the highest dose which used in phase 1. These studies should be intended to provide an adequate basis for marketing approval of Ayurvedic drug and patent for proprietary medicines. Okay? So additional objective of phase 2 studies can be include evaluation of potential study endpoint, therapeutic remedies including concomitant medicines and target population.
the mild versus severe disease for the further studies in phase 2 or phase 3. This objective may be served for the exploratory analysis and determining the subjects of data and by including multiple endpoints in trials. सो व्हाट एग्जैक्टली एम ऑफ यूर फेज 2 ट्रायल, ठीक है। फेज 1 में हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम कितना डोज है वो डिसाइड करते हैं। फेज 2 में एक्चुअली जो भी डोसेस हम लोग सी फेज 1 में क्या देखा कि समझ इमेजिन करो कि अडुल्सा का तुम लोग का सिरप है, तो ओरिजिनल जो लास्ट तुम लोग का फिनिश प्रोडक्ट है उसमें से इमेजिन करो कि वी आर परफॉर्मिंग द फेज 1 में हम लोग ने कि मैक्सिमम 5 to 6 ml अगर कोई पर्सन एट अ टाइम वो सिरप लेता है एंड मतलब 5 to 6 ml पर टाइम, ऐसे दिन में 3 बार अगर वो सिरप लेता है तो इट इज सेफ, इट इज नॉट शोइंग एनी हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। ये हम लोग को क्या पता चला कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। फेज 2 में हम लोग को देखना है कि एक मिनिमम मतलब एग्जैक्टली ऐसे कितना अमाउंट लेना चाहिए जो एक्चुअली थेरापेटिक इफेक्ट दिखेगा। सी जो फेज 1 में जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो भी क्या बोल सकते हैं हम लोग पीपल्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, दीज आर द नॉर्मल हेल्दी पीपल्स, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि वो ड्रग कितना मतलब मैक्सिमम डोज कितना है और द ड्रग इज सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स और नॉट, ठीक है। ये हम लोग फेज 1 में देखते हैं। तो फेज 1 में हम लोग का उसका थेरापेटिक इंडेक्स या फिर थेरापेटिक इफेक्ट पता नहीं चलता है, बिकॉज जो पीपल हम लोग या फिर जो भी सब्जेक्ट हम लोग फेज 1 के लिए लेते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं जो हेल्दी होते हैं, they don't have any particular cause of disease or something, these are normal healthy human beings. Phase 2 में जो peoples होते हैं they are actually we are find out the people to treat this particular disease, मतलब जिनको कफ, जैसे कि अडुल्ट से अगर कफ सिरप है तो जिनको कफ का प्रॉब्लम है या फिर जिनको जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू ट्राइडिशा जिसके अंदर कफा पित्ता हाई अमाउंट है और उसकी वजह से दे आर प्रकृति इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द विकृति और उसके वजह से उनको बाकी सारी चीजें होती है जैसे कि वेट बढ़ता है या फिर नोज रनिंग होता है, हेड चेड होता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं दैट आर द सिम्टम्स फॉर द कफ। तो फेज 2 में एक्चुअली वी आर गिविंग दिस पर्टिकुलर डोज फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली हैविंग दैट पर्टिकुलर डिसीज और पर्टिकुलर हैविंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जिसकी वजह से उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कितना डोज देना चाहिए। अभी हम लोग को पता है कि मिनिमम 6 to 5 ml डोज बॉडी के लिए सेफ है, लेकिन क्या सच में ट्रीटमेंट के लिए 5 to 6 ml देना जरूरी है या फिर नहीं? तो वो लोग स्टार्ट करेंगे 1 ml 2 ml 3 ml देके, सो दे कैन फाइंड आउट कि मिनिमम 3 to 4 ml डोसेज अगर हम लोग देते हैं दिन में 3 बार, सो इट इज ट्रीटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डोसेज। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली डोज कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली इट इज रियली ट्रीटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट, ये हम लोग फेज 2 में देखते हैं एंड इसका इन डिटेल स्टडी हम लोग फेज 3 में करते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर एक्चुअली डिसाइडिंग द डोसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट और डोज है जो इवेल्युएशन के लिए यूजफुल रहेगा, दैट इज यूर फेज 2 वाला ट्रायल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर इतना वो जो डोज है वो अगर हम लोग किसी मतलब जो एक्चुअली ट्रीटेबल पर्सन है उसको देते हैं तो उसको कुछ उसमें हार्म तो नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग फेज 2 में देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम फेज 3 ट्रायल के लिए हम लोग उसका एग्जैक्ट डोसेज फॉर्म फाइंड आउट करते हैं कि फेज 3 में कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के एक्चुअली तुम लोग ये लेते हो, सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है। वो हम लोग फेज 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे। सो तुम लोग को क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली फेज 2 में क्या करते हैं। फेज 1 में क्या करते हैं, हेल्दी नॉर्मल बीइंग्स होते हैं एंड हम लोग देते हैं कि मैक्सिमम टॉलरेंसी देखते हैं एंड उसके बाद उसका कुछ साइड सीवियर इफेक्ट होता है या नहीं देखते। फेज 2 में वी आर एक्चुअली फाइंड आउट द इफेक्टिव ऑफ द डोज, दैट इज में कहा गया है, ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट गोल टू फेज टू डिटरमाइन अ डोज एंड रेमेडियन फॉर फेज 3 ट्रायल्स। तो एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ डोज है वो पीपल के लिए इफेक्टिव रहेगा वो हम लोग फेज 2 में देखते हैं। लेट्स वी विल मूव फॉर द फेज 3, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी परफॉर्म इन फेज 3। सी क्लिनिकल ट्रायल्स में जो 3 ट्रायल्स 4 जो तुम लोग के फेजेस होते हैं उस 4 फेज ऑल द फेजेस में से फेज 3 सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें आप लोग एक्चुअली डोज फाइंड आउट करते हैं एंड वी आर एक्चुअली फाइंड आउट कि सच में वो डोज इफेक्टिव हो रहा है, उसके बॉडी में क्या क्या फार्माकोडायनामिक या फिर फार्माकोकाइनेटिक सारे चेंजेस होते हैं, मतलब how the drug is actually reacting to the body and how the body responds to the drug, ये जो एक्चुअली क्लिनिकल फंडा होता है वो हम लोग फेज 3 में देखते हैं, ठीक है। So phase 3 studies have a preliminary objective to demonstrate and confirmation of the therapeutic benefits, मतलब जो डोज हम लोग ने फेज 2 में डिसाइड किया था कि हम लोग को ऐसे लग रहा है कि मिनिमम 3 to 4 ml अगर हम लोग पर डोज के हिसाब से दिन में 3 डोज देते हैं तो इज इट रियली इफेक्टिव,
4 या 5, क्योंकि एक दिन में तो पता नहीं चलने वाला है, तो उसका जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके बाद सच में इट इज गिविंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और जो भी पर्टिकुलर डिसीज के लिए हम लोग को ट्रीटमेंट के लिए यूज करें, क्या उस डिसीज के जो भी सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग फेज 3 में देखते हैं. So phase 3 studies have preliminary objective to determine and demonstrate the confirmation of the therapeutic benefits. Sorry, मैं उसको maximize करना भूल गई हूँ. Now I feel it is better to read. Okay. So studies in the phase 3 are designed to confirm the preliminary evidence accumulated in phase 2 that drug is safe and effective for the use in intended condition and recipient populations. ठीक है, मतलब जो डोज हम लोग ने फेज 2 में डिसाइड किया था वो सच में इफेक्टिव है ना सेफ है, ये हम लोग फेज 3 में देखते हैं. तो स्टडीज इन फेज 3 में also further explore for dose response relationship. जो मैंने तुम लोग को बोला, we are actually find out the pharmacological study, that is what is drug does to the body and what body does to the drug, that is the pharmacodynamics and pharmacokinetic studies. ठीक है, so relationship among the dose and clinical response, the use of the drug in wider population in different stage of the diseases. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ द डिसीजेस हम लोग फाइंड आउट करते हैं. मतलब जैसे कि कफ होता है तो कफ के अंदर भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक्यूट कफ होता है, लॉन्ग टर्म कफ होता है, किसी को ड्राई कफ होता है, किसी को वेट कफ होता है, फिर किसी को कफ सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन में होता है, किसी का कफ इतना डीप होता है कि वो लंग्स में इन्फेक्शन होता है. ठीक है, तो अभी उसके बाद क्या होता है, कफ बॉडी में डिपॉजिट होने के बाद वो कफ के हिसाब से तुम्हारे किडनी में प्रॉब्लम होते हैं या फिर तुम्हारे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कफ पे वजह से होते हैं. तो ये क्या है ना, डिफरेंट स्टेज ऑफ डिसीजेस जो है वो हम लोग ले रहे हैं. अगर सेकेंड एग्जांपल लेना है तो ओबेसिटी का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर कोई और की जो भी तुम लोग के डिसीज का एक पर्टिकुलर टर्म्स होता है उसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के, एंड हर एक स्टेजेस का उसका ग्रुप बनाएंगे हम लोग पीपल का, एंड उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे, एंड वी आर फाइंडिंग आउट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ दिस ड्रग इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. ठीक है, सो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग. मतलब अगर उनको ट्रीटमेंट के लिए कुछ अलग ड्रग भी हम लोग प्रोवाइड करें तो उसके हिसाब से दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन में कितना इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, इट इज सेम एज यूर लाइक यूर ओरिजिनल क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसके अंदर हम लोग कोई ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज करें तो उसके साथ हम लोग पैरासिटामोल का भी ड्रग देते हैं, बिकॉज टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, या फिर उसके बाद तुम्हारे बॉडी में कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग को देखना है कि जो भी मेडिसिन हम लोग ट्रीट करें, जैसे कि अगर और डिटेल में और एक एग्जांपल देखना है तो वी आर प्रिपेयरिंग अडुल्सा सिरप. ठीक है, अडुल्सा सिरप में हम लोग ने 4 इंग्रेडिएंट यूज किए थे. तो इमेजिन करो कि जनरली अडुल्सा सिरप वी आर यूजिंग फॉर कफ, एंड हम लोग ने जो स्पेशल अडुल्सा सिरप बनाए वो वेट एंड ड्राई कफ के लिए भी इफेक्टिव, बिकॉज वी आर यूजिंग 4 डिफरेंट कंपोनेंट, दैट इज द अडुल्सा. उसके बाद क्या लिया था हम लोग ने, मैं भूल गई, पेपर सॉरी अडुल्सा, उसके बाद जिंजर एंड देन टर्मरिक एंड तुलसी. ठीक है, सो जनरली ये पार्ट लिए थे, लेकिन कफ जब किसी को होता है तो उसके साथ उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है. ठीक है, सो बॉडी टेम्परेचर मतलब उसको क्या है, उसको इलनेस जैसा फील होता है, खाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये जो कुछ भी इफेक्ट है, हेड चेक होता है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इमेजिन करो यू आर आल्सो गिविंग द कंबाइन अदर ड्रग्स. मतलब जैसे कि अडुल्सा सिरप के लिए तुम लोग कोई और सिरप भी दे रहे हो, या फिर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तुम लोग ने इमेजिन करो नीम का एक्सट्रैक्ट का कोई एक अदर मेडिसिन है वो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हो टू सेफ्टी के लिए. तो ऐसा कुछ तुम लोग अलग अलग के मेडिसिन उनको दे रहे हो, क्योंकि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में कैसे होता है, सिर्फ सिंगल ट्रीटमेंट नहीं होता है. जैसे कि मैंने बोला कि उसके अंदर ये हम लोग डिटेल में 4 फेज के बाद देखेंगे. जैसे कि पूर्व कर्मा होता है. ठीक है, तो पूर्व कर्मा में जो बॉडी क्लीननेस के लिए तुम लोग कुछ देते हो, उसके बाद उसके ऊपर एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट के टाइम पे फ्रैग्रेंसेस हम लोग देते हैं जो हम लोग इनहेल करते हैं टू रिड्यूस द बॉडी को काम लाने के लिए. तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है वो ड्रग देने के बाद उतना अपना मेजर ड्रग्स का क्या रिस्पॉन्स है, उसका कितना इफेक्टिवनेस है, ये हम लोग को चेक करने के लिए जो कुछ भी थेरेपी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज वो परमिनेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हम लोग करते हैं वो हम लोग फेज 3 में करते हैं. ठीक है, ओके, सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. So Ayurvedic drug and patent and proprietary medicines intended to be administration for long period
Trial involves extended to expose to the drug are ordinarily conducted in phase 3. Although they may be initiated in phase 2, मतलब phase 2 में हम लोग find out करते हैं कि exactly dose कितना, जैसे मैंने बोला कि 3 ml to 4 ml हम लोग phase 2 में initiate करते हैं, and उसके बाद वो different group of people को देके उसका जो कुछ भी है मतलब efficacy और फिर effectiveness हम लोग phase 3 में continue करते हैं. So these studies carried out in phase 3 complete the information needed to support the adequate instruction for use of the ड्रग एंड प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन. मतलब फेज 3 करने के बाद जो कुछ भी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है दैट इज योर प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन. मतलब आइडियली हम लोग को फेज 3 से पता चलता है कि एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट ऑफ डोज वी आर एक्चुअली नीडेड फॉर ट्रीट ऑफ द पर्सन. ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ योर डिसीजेस. उसके बाद कितने डोसेज लेने हैं दिन में कितने बार, उसके बाद उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा. ठीक है, हाउ मच टाइम एग्जैक्टली वी नीड टू टेक कंटिन्यू द ट्रीटमेंट. ये सारा इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है ये इंफॉर्मेशन हम लोग को फेज 3 में कंफर्म होता है. जो हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन लिमिट मिलता है कि एग्जैक्टली दवाई को तुम लोग को कैसे लेना है, उसको ट्रीटमेंट में कैसे यूज करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन कंफर्म होता है. दैट इज योर फेज 3 वाला ट्रायल. ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. So for Ayurvedic drug, patent or proprietary medicines approved outside of India, phase 3 studies need to be carried out primarily to generate the evidence of efficacy and safety of the Ayurvedic drug, patent or proprietary medicines in Indian participant when used as a recommended in the prescribing information. Prior to conduct the phase 3 trial studies इन द इंडियन पार्टिसिपेंट्स. मीन्स व्हाट, कि जैसे ही मैंने बोला कि प्रोडक्ट को अगर कमर्शियलाइज करना है, सी आगे ये स्लाइड्स है जो हम लोग देखेंगे. सी फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 all the phases are not necessary performed to each and every drug or each and every new medicines. ठीक है, जैसे कि अगर मैंने अभी इमेजिन करो, जैसे अपना खुद का एग्जांपल ले लो कि हम लोग अडुलसा सिरप बना रहे हैं, तो अडुलसा सिरप का ऑलरेडी मार्केट में अडुलसा सिरप्स अवेलेबल है एंड हम लोग को पता है कि अडुलसा सिरप सेफ है लेने के लिए. जैसे कि एज पर मेडिसिन उन्होंने बताया कि मैक्सिमम अडुलसा सिरप 6 ml या फिर 8 ml अगर अडुलसा का तुम लोग एक्सट्रैक्ट बॉडी के लिए लेते हो तो इट इज डेफिनेटली सेफ फॉर योर बॉडी. ये ऑलरेडी हम लोग को पता है बिकॉज ऑलरेडी मॉडर्न अडुलसा सिरप मार्केट में आ चुके. तो हम लोग को आइडियली फेज 2 करने की जरूरत नहीं बिकॉज हम लोग को उसका टॉलरेंसी वाला लिमिट या फिर फेज 1 एंड फेज 2 करने की जरूरत है बिकॉज उसका टॉलरेंसी का जो लिमिट है या फिर उसका जो पर्टिकुलर अमाउंट डोसेज का एक पर्टिकुलर लिमिट है वो वी आर ऑलरेडी हम लोग को पता है बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी हो चुके हैं. मार्केट में वो ड्रग अवेलेबल है एंड एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन लेने के बाद कोई भी उसके सीवियर इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, क्या वर्ड था वो मैं भूल गई. साइड इफेक्ट के लिए जो वर्ड है दैट इज कि एग्जैक्टली हम लोग को उसके साइड इफेक्ट पता चलता है कि कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहे सीवियर, उसके कुछ भी सीवियर इफेक्ट हम लोग को पता नहीं. दैट इज योर एडवर्स ड्रग इवेंट हम लोग को नहीं हो रहे उस पर्टिकुलर ड्रग से, तो उसके लिए डायरेक्टली तुम लोग को फेज 1 और फेज 2 करने की जरूरत नहीं है. बट फेज 3 इज एवरी टाइम जब भी तुम लोग को न्यू ड्रग लॉन्च करना है, फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके लिए अगर तुम लोग को कंपलसरी फेज 3 करना जरूरी है. सेम वे अगर तुम लोग को आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ड्रग कमर्शियलाइज के लिए भेजना है तो डेफिनेटली दे नीड अ फेज 3 वाला डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, इट्स नॉट ओनली आउट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में भी कोई भी ड्रग तुम लोग को लॉन्च करना है, न्यू कमर्शियलाइज करना है, so you can skip phase 1 and phase 2 trial. Definitely you need to take a permission. जो भी clinical trial थी तुम लोग को accept, मतलब उन्होंने accept करना चाहिए कि हाँ तुम लोग को phase 1 और phase 2 करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए तुम लोग को उस तरीके से explain करना पड़ेगा. Then you can directly perform the phase 2. ठीक है, why this is also important because जब भी तुम लोग कोई भी clinical trials करते हैं तो budget is also very important and definitely you are actually treating the people. ठीक है, तो हम लोग खाली फुकरे से हम लोग बोलते हैं कि एनिमल स्टडीज में खाली फुकरे एनिमल को परेशान करना जरूरी नहीं है. वैसे डेफिनेटली ह्यूमंस बीइंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एनिमल्स, सो उनको भी अननेसेसरी तुम लोग को ट्रीट करके मतलब ये करने की जरूरत नहीं है. सच में नीडेड है देन गो फॉर अ फेज 1 एंड फेज 2, अदरवाइज डायरेक्टली कंटिन्यू विद द फेज 3 एंड जस्ट फाइंड आउट द एफिकेसी ऑफ योर डोजेज इन फेज 3 on that particular group of subject of human beings because budget is also important because जब तुम लोग clinical trials करते हो तो उनको खाना पीना से लेकर सोने का बेड भी तक यहाँ से सारी चीजें हम लोग को करनी पड़ते हैं. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर तुम लोग को क्लिनिकल ट्रायल्स करना होता है. नेक्स्ट
If the application of is for the conductance of clinical trial as a part of multinational clinical development of the drug, the number of sites and participants as well as the justification for undertaking such trials in India should be provided the licensing authority along with the application. ये वही पॉइंट है जो मैंने तुम लोग को अभी अभी एक्सप्लेन किया कि अगर तुम लोग को कोई भी ड्रग का एनालिसिस करना है, ठीक है, इफ द एप्लीकेशन इज फॉर कंडक्ट फॉर क्लिनिकल ट्रायल as part of multinational clinical development of the drug, the number of sites and participants as well as the justification for undertaking such trials in India should be providing to the licensing authorities along with the application. कि सच में तुम लोग को क्लिनिकल ट्रायल्स करना इम्पोर्टेंट है, इफ रियली नीडेड, फर्स्ट पॉइंट, सच में ऑल थ्री फ्रेजेस आर नीडेड, ठीक है, वाई, तो उसका जस्टिफिकेशन तुम लोग को देना होता है इफ यू आर गोइंग फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है. सो up till now anybody is having any doubt, just write in chat box if you have any doubt, otherwise I will proceed for the phase 4. Just write no if you don't have any doubt, otherwise raise your hand if you have any doubt. No ma'am. Okay, chalo. So we will continue for your phase 4. Okay. So phase 4 is nothing but the post-marketing trials or studies other than the routine surveillance performed after drug approval and related to the approval of indications. These trials go beyond in prior demonstration of the drug safety, efficacy and dose definition. These trials may not be considered necessary. Uh, these trials may not be considered necessary at the time of new approval of Ayurvedic drug or patent or priority medicines, but may be required for the licensing authority for optimizing the drug use. Okay? They may be any type, but should be valid scientific objective. Phase 4 trial include the additional drug-drug interaction, dose response, safety studies, trial design, and support use under the approval indications. Example, mortality, morbidity studies, okay? Epidemiological studies. So phase 4 is exactly same for your clinical trials in modern medicines, like in a like a modern medicine, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो होता है. मतलब जब भी तुम लोग का फेज 3 में तुम लोग को पता चलता है कि ड्रग का एग्जैक्टली इतना इतना अमाउंट ऑफ डोज इफेक्टिव है इतने इतने लोगों के हिसाब से, तो उसके हिसाब से तुम लोग का जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें तुम लोग लिखोगे कि अडल्ट के लिए तुम लोग को 3 ml दिन में लेना है, ठीक है. 10 ईयर्स के बच्चे जो स्मॉल 10 ईयर्स से उसका जिनका एज कम है उनको 2 ml है, फिर 1 ml लेना है, ठीक है. जिनको सीवियर इफेक्ट है उनको ज्यादा डोज लेना है वगैरह, जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है वो तुम लोग वहाँ पे मेंशन करोगे. उसके बाद जब ड्रग मार्केट में जाएगा उसके बाद दे आर स्टार्टिंग गिविंग द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, मतलब जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है वो भी वो ड्रग ट्राई करेंगे, ठीक है. जो एटीबी को क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग वी आर नॉट टेकिंग अबाउट द 60-70 एज के आगे वाले लोग, ठीक है. तो उनको जब वो ड्रग दे रहे हैं तो इज देयर एनी प्रॉब्लम्स फॉर देम, दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स और एनीथिंग, जो कुछ भी है वो फेज 4 में तुम लोग का चलेगा. एंड उसके बाद उसका जो कुछ भी डाटा आएगा दैट इज द mortality, morbidity, death. Epidemiological studies is nothing but the study of your drugs with a group of the people. मतलब 80 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं उनका कंबाइंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रग को सपोज एक एरिया में 100 पीपल में फिर 180 पीपल या फिर 200 पीपल्स में अगर यूज किया है तो यूज करने के बाद एग्जैक्टली उनके ऊपर उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या मिला है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर जो कुछ भी तुम लोग के टर्म है जी टेस्ट टी टेस्ट वगैरह, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसमें होता है इज एपिडोमोलॉजिकल स्टडीज. मतलब एक बंच ऑफ पीपल पे स्टडीज करने के बाद उसके बाद उसका एक कंक्लूजन निकालना कि ड्रग इज सेफ और नॉट, दैट इज ए एपिडोमोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है. उसके बाद मॉर्बिलिटी एंड उसका जो रेट देखना है, मतलब ये ड्रग लेने के बाद कितने जन को कुछ सीवियर प्रॉब्लम हुआ या फिर किसी का डेथ हुआ वगैरह जो कुछ भी है, ये सारा स्टडीज हम लोग को
पोस्ट मार्केटिंग के बाद पता चलता है. दैट इज योर फेज 4 स्टडीज विच इज सेम एज योर क्लिनिकल ट्रायल के नॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी हम लोग स्टडीज करते हैं. ठीक है, सो हैव यू क्लियर about what are the phase 1 2 3 4 in your clinical trials for ayurvedic. ठीक है, अभी तुम लोग को थोड़ा 2-3 डेफिनेटली क्वेश्चंस तुम्हारे में दिमाग में होने चाहिए या फिर एक्सपेक्टेड है कि तुम लोग पूछोगे. मुझे नहीं पता तुम लोग पूछने वाले हो नहीं, लेकिन जनरली अभी तक हम लोग ने 4 फेजेस देखे. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आइडियली जो भी तुम लोग फेजेस यूज कर रहे हो मॉडर्न मेडिसिन के लिए, द फेज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन 80% जो काम है वो सिमिलर ही है. मतलब जो गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं वो सेम है. सेम जैसे कि हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में पहले हम लोग वही देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ डोज देना है जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होते हैं. फेज 2 में डेफिनेटली वी आर एक्चुअली टेकिंग द जिनको डिसीज हुआ है वो देखते हैं एंड मैक्सिमम कितना वो डोसेज जो अमाउंट है वो डिसाइड करते हैं. फेज 3 में वी आर एक्चुअली ट्रीटिंग द पीपल विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिसीज जो यहाँ पे भी सेम है. नेक्स्ट फेज 4. तो व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली वो वाला क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ये वाला क्लिनिकल ट्रायल्स. ठीक है, बिकॉज मेथोडोलॉजी तो सेम है. ठीक है, कंसेंट फॉर्म वगैरह वो सारा सेम है. सो एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंट इन द क्लिनिकल ट्रायल इन ASU. Is anybody having the answer of this question? Because मुझे expected था कि ये question तुम लोग पूछोगे, लेकिन अभी मैंने पूछ लिया है. तो अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो कोई मुझे बता सकता है. You just raise your hand. Suppose you know the answer. What is exactly different? I will wait till 5 to 5 seconds to you can raise your hand. If you don't raise your hand, then I will explain. Nobody know? ठीक है, ठीक है. So Ma'am, they do Purva Karma and Paschatya Karma type. Exactly. Okay. So what exactly difference? The difference is that the way they are treating the people or the methodology which they are actually using for treatment in this clinical trials. ठीक है, जो guidelines है वो same है, लेकिन जो treatment हम लोग provide करें, see after the treatment जो उसका analysis करना है वो भी almost similar रहेगा, लेकिन जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट का एक जो प्रोसीजर है, मतलब ड्यूरिंग द फेज 1 फेज 2 फेज 3 के अंदर जो भी तुम लोग प्रोसीजर फॉलो करने वाले हो वो तुम लोग की मॉडर्न प्रोसीजर नहीं है. दैट प्रोसीजर इट इज अ सेम प्रिंसिपल विच वी आर यूजिंग इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल और आयुर्वेदिक थेरेपी. So what is that particular procedure which we are using during phase 1 phase 2 or phase 3 trials? Let's see the exactly in short कि what are the procedure they are follow. ठीक है, सो अप टिल नाउ तुम लोगों को समझ में आया कि एग्जैक्टली 4 फेजेस क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स के. लेट्स मूव हाउ दे आर गोइंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स और व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर योर क्लिनिकल ट्रायल्स. ठीक है, जो 1 सेकेंड. सो अभी जस्ट तुम लोग ने अंडरस्टैंड किया कि फेज 4 क्या होता है. ठीक है, लेट्स सी द हाउ एग्जैक्टली ट्रीटमेंट इज गोइंग. ठीक है, सो प्री रिक्विसाइट्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च. ठीक है, सो यहाँ पे इन डिटेल दिया है कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कैसे करोगे. सो इंट्रावेनस डिटेल मतलब क्या भी है. ड्रग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ट्रायल ड्रग, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं. So that is nothing but the standardized drug as per the pharmacopoeial standard in-house standard should be taken for the trial. मतलब जो कुछ भी ड्रग तुम लोग लेने वाले उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है कि ये ड्रग प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज किया हुआ है एंड उसका पूरा डिटेल मेंशन है. इट इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स along with the passport data of the raw drugs, standard operating procedure for preparation, certification of analysis of both the raw material and finished product should be properly documented. फॉर दिस पर्पज द गाइडलाइंस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस ये जो है वो रिफर करना है कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसीजर है. ठीक है, ओके. देन सेफ्टी टॉक्सिसिटी स्टडीज एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ठीक है, इसके लिए भी दे हैव गिवन द गाइडलाइंस. मतलब जो प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन तुम लोग ने ड्रग क्या किया उसका डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग को सबसे पहले प्रोवाइड करना है व्हेन दिस पर्टिकुलर ड्रग गोइंग फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल. नेक्स्ट जो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, थेरेपी एंड प्रोसीजर फॉर योर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल्स में करते हो. So following factor may be considered while designing the efficacy study and validation of the therapy and the procedure.
ठीक है. I will read at least therapy वाला procedure, then actually panchakarma treatment we will see in next lecture because only 2 minutes are left in this lecture. ठीक है. So I just read this particular point. So general consideration for the panchakarma and other procedure, मतलब जब भी तुम लोग को पंचकर्मा का ट्रीटमेंट चालू करना है along with your new drug जो तुम लोग ने स्टैंडर्डाइज किया है, तो prior to the study what are the things you have to first of all monitor, that is suitability, that is a suitable अनसुटेबल पर्सन फॉर द थेरेपी प्रोसीजर एंड डिसीज. ठीक है. जैसे कि अगर हम लोग को कोई भी डिसीज के लिए लेना है, सबसे पहले हेल्दी नॉर्मल बींग्स लेने हैं, उसके बाद थर्ड स्टेज के लिए, सेकेंड स्टेज के लिए जो भी लेने हैं हम लोग को कफ वाले पेशेंट, वो कौन से स्टेज में होने चाहिए. नेक्स्ट में पहले सारे पॉइंट्स पढ़ती हूँ. ठीक है. प्री एंड पोस्ट थेरापेटिक प्रोसीजर, आइडियल सीजन एंड पीरियड, possible error may be performed and participant and their preventions, duration of each procedure based on individual constitution and severity of the disease condition, possible complications and adverse event and their management, dietary lifestyle guideline before, during and after performing the therapy, quality of the medicines and subjective and objective parameter of the evaluation. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, सुटेबल अनसुटेबल पर्सन फॉर द थेरेपी डिसीज एंड प्रोसीजर एंड डिसीज. अभी हम लोग को थेरेपी 3 स्टेज में करना है. तो सबसे पहले अगर नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स लेने हैं तो कौन से लेने हैं, कितना ग्रुप ऑफ लेना है, उसमें मेल एंड फीमेल का लेना है या फिर ओनली मेल लेना है, ओनली फीमेल लेना है, फीमेल एंड मेल लेना है, तो उनका एग्जैक्टली एज का ग्रुप क्या रहेगा, ये सारा हम लोग को डिसाइड करना है. नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट थेरापेटिक प्रोसीजर, जैसे कि आयुर्वेदा का मेजर पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, उससे पहले अगर तुम लोग को वो पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए व्हाट आर द प्री ट्रीटमेंट वी नीड टू गिव. ठीक है. उसमें बहुत सारे टाइप्स है जो हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे. सो एग्जैक्टली कौन से प्री ट्रीटमेंट एक्चुअली नीडेड है. उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सारी चीजें हम लोग को प्रायर टू देखने. आइडियल सीजन और पीरियड, ये डेफिनेटली रहेगा क्योंकि एग्जैक्टली हर एक ट्रीटमेंट का कुछ पीरियड है, अभी मुझे इन डिटेल देखना पड़ेगा बिकॉज ये पॉइंट एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि आइडियल सीजन एंड पीरियड क्या है. मैं थोड़ा सा सर्च करके उसके ऊपर तुम लोग को बताती हूँ कि